کیا اب جانتے ہیں کہ جس شخصیت نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی، جس کی تعلیمات آج بھی اربوں لوگوں کی زندگیوں میں روشنی بکھیر رہی ہیں، اس کا بچپن یتیمی، غربت اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے سفر پر لے چلتا ہوں جو محض ایک کہانی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن کا شاندار واقعہ۔ 6 صدی عیسوی کا دور تھا۔ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جہالت، ظلم اور بد امنی کا راج تھا۔ طاقتور کمزور کو کچل رہے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اور انسانیت اپنی بدترین حالت میں تھی۔ ایسے ہی ایک وقت میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک ایسا نور ظاہر ہونے والا تھا جو پوری دنیا کو منور کر دینے والا تھا۔ مکہ، وہ مقدس شہر جہاں خانہ کعبہ واقع تھا، عرب کا سب سے اہم مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت کرتے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے اور قبائلی لڑائیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ قریش کا قبیلہ سب سے طاقتور اور معزز سمجھا جاتا تھا، اور اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ عبداللہ بہت ہی خوبصورت، نیک اور شریف انسان تھے۔ ان کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ یہ شادی مکہ کی ایک اہم تقریب تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ کو تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانا پڑا۔ اس وقت آمنہ حاملہ تھی۔ واپسی پر جب قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو عبداللہ بیمار ہو گئے۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں وہیں رکنا پڑا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے ہونے والے بیٹے کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ آمنہ اب بیوہ تھی، حاملہ تھی اور اکیلی تھی۔ یہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا، سوچئے۔ ایک عورت جو ماں بننے والی تھی، لیکن اس کے شوہر اسے چھوڑ کر چل بسے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ یہ وہ بچہ تھا جسے دنیا کی رہنمائی کرنی تھی، جسے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی تھی اور جسے انسانیت کو نیا راستہ دکھانا تھا۔ اور پھر آیا وہ مبارک دن، 12 ربیع الاول، ہاتھی کے سال کے 50 دن بعد۔ یہ پیر کی رات تھی جب مکہ کی فضاؤں میں ایک خاص طرح کی روحانیت پھیل گئی۔ بی بی آمنہ کو جب درد شروع ہوا تو انہوں نے بعد میں بیان کیا کہ انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ الٹا ایک نور ان کے ارد گرد تھا اور انہیں طمانینت اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ بابرکت بچہ پیدا ہوا تو عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ بی بی آمنہ نے بیان کیا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ایک نور ساتھ نکلا جس نے شام کے محلات تک کو روشن کر دیا۔ یہ نور اتنا تیز تھا کہ انہوں نے شام کی عمارتوں کو دیکھا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں تھا اور اس کی ناف بھی پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ رات کو ہی اور بھی عجائبات ہوئے۔ فارس میں آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ بحیرہ ساوو خشک ہو گیا۔ قصر کا محل کھڑتھرایا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ یہ سب اشارے تھے کہ کوئی عظیم تبدیلی آنے والی ہے۔ دایا شفا بنت اوف نے جب بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ انہوں نے فوراً عبد المطلب کو خبر دی جو بچے کے دادا تھے۔ عبد المطلب بہت بوڑھے تھے، لیکن اس خبر نے انہیں نئی جان دے دی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور بچے کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے۔ خانہ کعبہ میں عبد المطلب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ نام اس وقت عربوں میں رائج نہیں تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اپنے یہ غیر معروف نام کیوں رکھا تو عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اللہ اس کی تعریف کرے اور زمین پر لوگ۔ محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور واقعی آج پوری دنیا میں ان کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے اور ان پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ عرب کی روایت کے مطابق شریف گھرانوں کے بچوں کو دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ صاف ماحول میں پروان چڑھیں، خالص عربی سیکھی اور مضبوط بنے۔ ہر سال قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ آتو اور بچوں کو لے جاتی۔ اس سال بھی عورتیں آئی، لیکن کوئی بھی یتیم بچے کو لینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ دودھ پلانے کی اجرت باپ سے ملتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو فوت ہو چکے تھے۔ سبھی عورتیں امیر گھروں کے بچے لے کر چلی گئیں۔ صرف ایک عورت، بچی حلیمہ سعدیہ
वो बहुत गरीब थी, उनकी बिक्री दूध नहीं देती थी और उनके पास ऊँटनी भी बहुत कमजोर थी। उन्होंने अपने शौहर हारिस से कहा, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकती। चुल्लू इस यतीम बच्चे को ही ले चलते हैं। और ये फैसला उनकी जिंदगी बदल गया। जो ही उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, उनकी छातियों में दूध उतर आया। बच्चे ने पेट भर कर दूध पिया और सो गया। इस रात उनकी बिक्री ने भी दूध दिया और सबने शिकमसेर होकर खाया। वापसी के सफर में हलीमा की कमजोर ऊँटनी इतनी तेज चली कि सारे काफिले से आगे निकल गई। लोग हैरान थे। ये वही ऊँटनी थी जो आते वक्त सबसे पीछे थी। बन्नू साद के इलाके में, जो एक बंजर और खुश्क इलाका था, हलीमा के घर में बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया। उनकी बकरियां मोटी हो गई और खूब दूध देने लगे, जबकि दूसरे लोगों की बकरियां वैसी ही रहे। उनके खेतों में हरियाली आ गई, हर तरफ खुशहाली थी। दूसरे चरवाहे अपने रेवरों को वही ले जाते जहां हलीमा की बकरियां चरत, लेकिन फिर भी उनके जानवरों में वही हालत रहती। बरकत सिर्फ हलीमा के घर में थी और सब जानते थे कि ये इस मुबारक बच्चे की वजह से है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द बड़े होने लगे। 2 साल के होते होते वो इतने मजबूत हो गए जितने दूसरे बच्चे 4 साल में होते। हलीमा कहती थीं कि ये बच्चा कभी रोता नहीं था, हमेशा खुश रहता था और इसके चेहरे से नूर टपकता था। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 साल के थे तो एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। अब अपने रज़ाई भाइयों के साथ मैदान में खेल रहे थे कि अचानक आपके रज़ाई भाई दौड़ते हुए घर आए और चीखने लगे, हमारे कुरैशी भाई को 2 सफ़ेद पोश आदमियों ने पकड़ लिया है। हलीमा और उनके शौहर दौड़े हुए गए और देखा कि अब खड़े हैं। अब का चेहरा पीला है लेकिन अब बिल्कुल पुरसुकून है। जब पूछा कि क्या हुआ तो अपने बताया कि 2 सफ़ेद लिबास वाले आदमी आए जिनके हाथों में सोने का तश्त था जो बर्फ से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे लुटाया, मेरा सीना चाक किया, मेरा दिल निकाला, इसमें से एक सिया लोतला निकाल कर फेंक दिया और फिर मेरे दिल को बर्फ से धोया और वापस रख दिया। ये वाक़या हलीमा को बहुत खौफज़दा कर गया। उन्होंने सोचा कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अगरचे उन्हें इस बच्चे से बेपनाह मोहब्बत थी और बरकतों की बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि बच्चे को वापस मक्का ले जाना चाहिए। हलीमा ने आपको बीबी आमना के पास वापस पहुंचा दिया। बीबी आमना अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। अगरचे वो बेवा थीं और मुश्किलात थीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मामूली बच्चे थे। वो दूसरे बच्चों की तरह शरारतें नहीं करते थे, बुत परस्ती से दूर रहते थे, कभी आउट नहीं बोलते थे। उनकी सच्चाई और अमानत मशहूर होने लगी थी। जब आप 6 साल के हुए तो बीबी आमना ने फैसला किया कि मदीना चलीं। वहां आपके वालिद अब्दुल्ला की कब्र थी और वहां उनके रिश्तेदार बन्नू नज्जार भी रहते थे। बीबी आमना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी खादमा ऐमन मदीना गए। मदीना में 1 महीना गुजारने के बाद जब वापसी का वक्त आया तो रास्ते में अबवाक नामी मकाम पर बीबी आमना बीमार पड़ गईं। उनकी हालत खराब होती गई और आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। तसव्वुर कीजिए, एक 6 साल का बच्चा जिसने कभी अपने वालिद को नहीं देखा, अब इसकी वालिदा भी चल बसी हैं। इस बच्चे को अपनी माँ को दफनाया जाता है और फिर वो अकेला ऊँटनी पर सवार होकर मक्का वापस लौटता है। कितना दर्द, कितनी तन्हाई होगी इस छोटे से दिल में। लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिकायत नहीं की। अब साबिर थे, शुक्रगुजार थे और अल्लाह पर भरोसा रखते थे। ऐमन अब को लेकर मक्का वापस आए और अब के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब इस वक्त मक्का के सबसे बड़े सरदार थे। उन्हें अपने पोते से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अब को हमेशा अपने साथ रखते, खाना कबा के साए में बिछी हुई चादर पर अब को बिठाते, जबकि उनके अपने बेटे भी वहां बैठने की जुर्रत नहीं करते थे। अब्दुल मुत्तलिब कहते थे, मेरे इस बेटे को रहने दो, अल्लाह की किस्म इसकी बहुत बड़ी शान होगी। वो जानते थे कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि इस बच्चे की किस्मत में कुछ अजीम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहते, उनकी बातें सुनते और उनसे सीखते। अब्दुल मुत्तलिब एक दानिशमंद आदमी थे। वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे और अच्छे अखलाक के पाबंद थे।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अब सिर्फ 8 साल 2 महीने के थे तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब मुकम्मल तौर पर यतीम थे, ना वालिद ना वालिदा ना दादा। मरने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और कहा, मैं मोहम्मद को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसकी हिफाजत करना क्योंकि ये यतीम है। अबू तालिब ने वदा किया और उन्होंने इस वादे को उम्र भर निभाया। अबू तालिब खुद बहुत गरीब थे, उनके बहुत से बच्चे थे और माली मुश्किलात थीं, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से भी ज्यादा अजीज रखा। अब को हमेशा अपने साथ रखते, खाना आपके साथ खाते और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखते। अबू तालिब की बीवी फातिमा बिन्त असद भी अब से बहुत मोहब्बत करती थी। अब उनसे इतना प्यार करते थे कि बाद में फरमाया, वो मेरी माँ के जैसी थीं। जब अब 12 साल के हुए तो अबू तालिब तिजारती काफिले के साथ शाम जाने वाले थे। अब भी साथ जाना चाहते थे। पहले तो अबू तालिब ने मना किया, लेकिन जब काफिला निकल रहा था और अपने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, चचा जान, मैं आपको किसके पास छोड़ कर जा रहे हैं? ना मेरा बाप है ना माँ। तो अबू तालिब का दिल पसीज गया और उन्होंने आपको साथ ले लिया। ये सफर बहुत अहम था। रास्ते में बसर नामी शहर आया जहाँ एक राहिब रहता था जिसका नाम बहर था। वो बहुत आलम था और पुरानी किताबें पढ़ता था। जब कुरैश का काफिला वहां से गुजरा तो बहर ने अपने खानका से बाहर देखा और एक अजीब मंजर देखा। एक दरख्त अपनी शाखें झुका रहा था ताकि एक बच्चे को साया दे और बादल इस बच्चे के सर पर साया किए हुए था। बहर को समझ आ गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसने पूरे काफिले को खाने की दावत दी। खाने के दौरान बहर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा। आपके चेहरे पर नूर था, आपकी आंखों में सुकून था और आपकी शख्सियत में कुछ खास बात थी। बहर ने आपसे सवालात पूछे और फिर आपकी पुश्त पर महर नबूवत देखी, 2 कंधों के दरमियान एक निशान जो पुरानी किताबों में आखिरी नबी की अलामत बताया गया था। बहर ने अबू तालिब से कहा, ये बच्चा बहुत खास है, इसे वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो। अगर यहूदी इसके बारे में जान गए तो ये इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी अरब से आएगा और ये सब अलामात इस बच्चे में हैं। अबू तालिब सख्त फिक्रमंद हो गए। उन्होंने अपना तिजारती सफर अधूरा छोड़ा और फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले आए। मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो रहे थे। अब एक गैर मामूली नौजवान थे। जहां दूसरे नौजवान फजूल कामों में मसरूफ रहते, अब हमेशा किसी न किसी मुफीद काम में लगे रहते। अब बकरियां चुराते, जो इस जमाने में आम काम था, और बाद में अपने खुद फरमाया, हर नबी ने बकरियां चराई हैं। अब की सच्चाई और अमानत दारी मशहूर थी। लोग आपको अल सादिक सच्चा और अल अमीन अमानतदार के लक़ब से पुकारते थे। लोग अपनी कीमती अशिया आपके अमानत अमानत रखते क्योंकि उन्हें यकीन था कि आप कभी खियानत नहीं करेंगे। आप कभी ऐउट नहीं बोलते थे, कभी गाली नहीं देते थे, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे। आप मुहज्जिब थे, शाइस्ता थे और हर किसी से अच्छे अखलाक से पेश आते थे। मक्का में बहुत सी बुराइयां आम थी। शराब नोशी, जुआ, जिना और दूसरी बुरी आदतें मुआशरे का हिस्सा थीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब से दूर रहते। आपने कभी शराब नहीं पी, कभी जुआ नहीं खेला और कभी किसी बुरी चीज में शामिल नहीं हुए। एक बार अपने बयान किया कि जवानी में 2 बार मेरे दिल में आया कि मैं भी दूसरे नौजवानों की तरह तफरी करूं। एक बार मैंने एक दोस्त से कहा कि मेरी बकरियों की देखभाल करो, मैं शहर में जा रहा हूं। लेकिन रास्ते में ही मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं सो गया और सुबह हुई। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद मैंने कभी ऐसा इरादा नहीं किया। ये अल्लाह ताला की हिफाजत थी। आपको नबूवत के लिए महफूज रखा जा रहा था और आपकी पाकीज़ा जिंदगी इसकी गवाही थी। जब आप 14 या 15 साल के थे तो कबाइल के दरमियान एक जंग हुई जिसे जंग फुज्जार कहते हैं। आपने इस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन आपका किरदार सिर्फ ये था कि आप अपने चचाओं को तीर उठा कर देते थे। आपने कभी किसी पर तीर नहीं चलाया। इस जंग के बाद
मक्का के कुछ शरीफ लोगों ने महसूस किया कि मुआशरे में जुल्म बढ़ रहा है और कमजोरों की कोई मदद नहीं करता। उन्होंने एक मुआहदा किया जिसे हल्फ अल-फुजूल कहते हैं। इस मुआहदे में ये तय हुआ कि मजलूम की मदद की जाएगी, जालिम का साथ नहीं दिया जाएगा, गरीबों और बेवाओं का ख्याल रखा जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे में शामिल होने को बहुत अहमियत दी। बाद में नबुव्वत के बाद भी अपने फरमाया, मैं अब्दुल्ला बिन जदवान के घर एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ जो मुझे सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा पसंद है, और अगर इस्लाम में भी मुझे ऐसे मुआहदे की दावत दी जाए तो मैं कबूल करूंगा। जैसे जैसे अब बड़े होते गए, अब तिजारत में दिलचस्पी लेने लगे। अबू तालिब गरीब थे और अब उनकी मदद करना चाहते थे। अपने लोगों का सामान लेकर तिजारत करना शुरू किया। मक्का में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और अमीर खातून थी जिनका नाम खदीजा बिन्त खुयल्द था। वो बेवा थी और तिजारत करती थी। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानत दारी के बारे में सुना था। उन्होंने अब को अपना सामान लेकर शाम जाने की पेशकश की और अपने गुलाम मैसरा को अब के साथ भेजा। ये सफ़र बहुत कामयाब रहा। अपने ना सिर्फ बहुत नफ़ा कमाया बल्कि अब की ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से लोग बहुत मुतासिर हुए। मैसरा ने वापसी पर खदीजा को तमाम वाक़यात सुनाए और ये भी बताया कि रास्ते में कैसे बादल अब को साया देता रहा और कैसे एक राहिब ने कहा कि ये शख्स नबी है। दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि कैसे एक यतीम बच्चा जिसने कभी अपने वालिद को नहीं देखा, जिसकी माँ 6 साल की उम्र में फौत हो गए, जिसके दादा 8 साल की उम्र में चल बसे, वो बच्चा कैसे अल्लाह के फजल से सबसे ज्यादा सच्चा, अमानतदार और मोहतरम शख्स बन गया। क्या आपने कभी सोचा कि मुश्किलात आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना सकती हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ताला कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें ये सबक देती है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। आपने कभी झूठ नहीं बोला, हत्ता के मजाक में भी नहीं। आज के दौर में जब झूठ आम हो गया है, हमें अब की सच्चाई से सबक लेना चाहिए। अमानत दारी से बढ़कर कोई खूबी नहीं। लोग अब पर अंधा एतमाद करते थे। आज हम अपने कारोबार में, अपने ताल्लुकात में कितनी अमानत दारी से काम लेते हैं। अखलाक इंसान की असल पहचान है। अब कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते थे, कभी गाली नहीं देते थे। आज हमारी जुबान कैसी है? गरीबों और यतीमों का ख्याल रखना फर्ज है। आप खुद यतीम थे लेकिन अपने हमेशा कमजोरों का साथ दिया। आज हम कितना ख्याल रखते हैं? बुराइयों से दूर रहना जरूरी है। आपने कभी शराब नहीं पी, कभी जुआ नहीं खेला। आज हम कितने परहेजगार हैं? अल्लाह ताला आपको नबूवत के लिए तैयार कर रहा था। आपका यतीम होना, आपका देहात में पिलना, आपका बकरियां चुराना, आपका तिजारत करना, ये सब आपकी तरबियत का हिस्सा था। बकरियां चुराने से अपने सब्र सीखा। छोटे जानवरों की देखभाल करने से अपने लोगों की रहनुमाई करना सीखा। तिजारत से अपने लोगों से मुआमलात करना सीखा। यतीमी से अपने दर्द महसूस करना सीखा। आपकी पूरी जिंदगी एक तरबियत थी। अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ सिखा रहा था जो एक नबी को जरूरत होती है। बचपन से ही आप में अजमत की अलामात थी। आपकी पैदाइश के वक्त के मौजिज़ात, नूर का जाहिर होना, आतिश कद्दे का बुझना, महल्लात का गिरना, हलीमा के घर में बरकतों का नुज़ूल, बकरियों का दूध देना, खुशहाली आना, सीने को चाक करने का वाक़िया, अल्लाह की तरफ से आपके दिल को पाक करना, बादल का साया, सफर में आपको धूप से बचाना, दरख्त का जकना आपको साया देने के लिए, बहर राहिब की पहचान, महर नबुव्वत को देखकर, मैसरा की गवाही, तिजारती सफर में मोजिज़ात देखना, ये सब इशारे थे कि ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन हमें क्या सिखाता है? पहला सबक, मुश्किलात आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए आती हैं। आप यतीम थे, गरीब थे, लेकिन आप हार नहीं मानी। आपने मेहनत की, सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। दूसरा सबक, अखलाक सबसे बड़ी दौलत है। आपके पास पैसा नहीं था लेकिन आपके पास अखलाक था, और इसी अखलाक ने आपको अल-सादिक अल-अमीन बनाया। तीसरा सबक, बुराइयों से बचना मुमकिन है।
اب ایسے معاشرے میں تھے جہاں ہر طرف برائیاں تھیں، لیکن آپ نے کبھی برائی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چوتھا سبق، کام کوئی بھی چھوٹا نہیں۔ اپنے بکریاں چرائی اور فخر سے کہا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ پانچواں سبق، کمزوروں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مظلوموں کا ساتھ دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسے بنی؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آپ کے اندر فطری طور پر نیکی کی، لیکن ساتھ ہی اپنے محنت بھی کی۔ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھا۔ اپنے اچھی صحبت اختیار کی۔ اپنے اللہ کی عبادت کی۔ بچپن میں ہی آپ میں حکمت کی۔ آپ فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے۔ آپ دوسروں کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ آپ میں رحم دلی کی۔ آپ کمزوروں پر ترس کھاتے تھے۔ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ میں بہادری کی۔ آپ سچ بولنے سے نہیں ڈرتے تھے، چاہے کتنا بھی مشکل ہو۔ حالانکہ آپ یتیم تھے، لیکن آپ کے خاندان نے آپ کا بہت خیال رکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور بہت محبت کی۔ انہوں نے آپ کو صاف ماحول میں پالا، جس سے آپ کی صحت اور زبان دونوں اچھے ہوئے۔ بی بی آمنہ نے اگرچہ کم وقت کے لیے آپ کی پرورش کی، لیکن انہوں نے آپ کو بے پناہ محبت دی۔ عبد المطلب نے آپ کو بہت عزت دی اور آپ کی قدر کی۔ ابو طالب نے اپنی غربت کے باوجود آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ انہوں نے آپ کو کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ فاطمہ بنت اسد نے آپ کو ماں جیسی محبت دی۔ یہ سب لوگ آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر آپ کی حفاظت کی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتوں نے آپ کی حفاظت کی۔ جب آپ کا سینہ چاک ہوا تو اللہ نے آپ کے دل کو پاک کیا۔ جب آپ تنہا تھے تو اللہ نے آپ کے لیے محبت کرنے والے بھیجے۔ جب آپ غریب تھے تو اللہ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ جب برائیاں آپ کو گھیرنے کی کوشش کرتیں تو اللہ نے آپ کو بچایا۔